بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Assalamu alaikum guests. That was a lovely tilawat from Muhammad Bilal Khan, and I am Zareen Nair. I have a degree in communication from University of California, Davis. I am the PR coordinator here at NOAA. I would like to welcome you all to NOAA's annual prize distribution ceremony. NOAA was first established in Islamabad by Dr. Muhammad Atif Ali with a small number of 30 students in 2006. It has now expanded beyond Islamabad to Rawalpindi and Lahore, and its number of students has exceeded thousands. NOAA's dream of helping students achieve their life goals is only now manifesting, since it hopes to keep expanding and helping students and change lives. NOAA boasts an alumnus of over 800 students, CSPs, and PMS. It is no coincidence that students attribute their achievements to NOAA because their faculty and staff work tirelessly in the endeavor of turning hopes into reality. Every year, NOAA celebrates its students' achievements by hosting a prize distribution ceremony for those who have been allocated in PMS and CSS. The ceremony is meant to highlight the students and the struggles they have overcome to reach their destination. Although in many ways, this is just the beginning for them, and we will be there for them to support them every step of the way. So far, the ceremony has been a grand event where alumni, prize winners, aspirants, family members, faculty, and staff all gather together under one roof. Unfortunately, due to current circumstances, we have had to shift everything online, including our classes. We are offering all our classes online, along with tutorial, mock examinations, quizzes, and assignments. Hence, we have also decided to drastically tone down the scale of the event so we may maintain social distancing and follow all SOPs, which is why we are streaming to you live on several different platforms, so you do not have to miss a single moment of happiness and celebration. Please give a moment to Noreen, who will welcome all our guests and viewers on behalf of the Administrative Department. Assalamu alaikum everyone. My name is Noreen Dar and I am representing the administrative staff. I have been a member of NOAA since the past 2 years and I am here. I am sure several of you recognize me as I recognize you. On behalf of the administrative staff, I would like to extend a warm welcome to all our proud winners and allocated students. This event has been organized just to you to celebrate and highlight your achievements. So feel free to enjoy the spotlight and all the praise coming your way because you surely deserve it and more. Your achievements have not gone unnoticed by NOAA and are proud to be part of your journey and lives. So congratulations to all of you. We couldn't be more proud to call you students of NOAA. We feel like proud parents sitting in the shadows watching you grow. There are not enough words to express how happy we are for you and your families. Keep shining bright and make the world so bright and proud. Stay safe and stay healthy. You have my best wishes. Take care. Allah Hafiz. I guess I hope you enjoyed Noreen's sweet words. Let's take a look at the event itinerary. So now the guests and faculty have joined us. We have had the recitation of the Holy Quran. We will have an inaugural speech by the CEO, a welcome address by the co-founder, individual remarks of allocated officers from PMS Balochistan, PMS Sindh, PMS Punjab, PMS KP, and then CSS 2019. We will have remarks on behalf of parents, then remarks on behalf of alumni, announcement of cash prizes for position holders, address by our chief guest, and then note of thanks and prayer. I would like to welcome your hosts for the remaining of the event.
They are two very special members of the Noah family who joined the rank of CSPs in 2018. First, I would like to welcome Farah Mumtaz. She has a master's in physics from Quaid-e-Azam University, from where she graduated in 2016. She also did her LLB from Punjab University in 2020. This highly educated and beautiful lady passed CSS in 2018, and after gaining third position in Azad Jammu Kashmir, she has now been located in OMG. Next, I would like to welcome Kamran Zahir. He has a Bachelor's of Engineering in Mechanical Engineering from the School of Mechanical and Manufacturing Engineering of NAST. Thank you so much, Zareen, for the very kind introduction. मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि आज के इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मुकाबले के इम्तिहान में हमारा कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम अफसरान की हौसला अफजाई है। इसके अलावा being seniors of 47th Common, I believe that it is our responsibility to welcome 48th Common and PMS officers of all provinces, the family of civil servants of Pakistan. आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी हर साल एक शानदार तकरीब का इनेकाद करती है जिसमें कामयाब अफसरान में इनामात तकसीम किए जाते हैं। इस साल मुश्किल हालात के पेश नज़र हम उस अंदाज में तकरीब तो ना कर सके, लेकिन अपनी रिवायत को कायम रखते हुए इस साल तमाम कामयाब अफसरान में उनकी कामयाबी की खुशी मिली, हमने उनके इनामात उनको इरसाल कर दिए। जैसे जैसे मैं इस तकरीब को आगे बढ़ाएंगे भी, हम अपने नाज़रीन जिसमें ज़्यादा तादाद से एस्पायरेंट्स की है, उनका तारुफ इस साल के कामयाब अफसरान से करवाएंगे ताकि हम ये जान सकें कि इस मुकाम पर पहुंचकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ तक पहुंचने में उनको किन मुश्किलात का सामना हुआ। हमें उम्मीद है कि इन तमाम पैगामात को सुनने के बाद आने वाले सालों में वो तमाम नौजवान जो अपने मुल्क को की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, वो तमाम लोग इस रहनुमाई हासिल कर सकें। हमारी इस तकरीब को नोआ की इंतजामिया, तलबा और तालिबात, सरकारी ओहदों पर फाइज अफसरान, काबिल एहतराम असातिज़ाए कराम और बिलखसूस हमारे मेहमान ख़ुसूसी ने शिरकत फरमाकर इस तकरीब की रौनक को दोबारा कर दिया। जैसा कि भी कामरान ने जिक्र किया कि ये तकरीब नोआ के तलबा और तालिबात और एलोकेट होने वाले स्टूडेंट्स के अंदर मेहनत और काविशों को सराहने के लिए मुनक्किद की गई। आज की ये महफिल एक मेहनती और खुशकिस्मत तलबा के नाम है जिन्होंने हार के खौफ को दिल से निकाल कर कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाया। उन साथी किराम के नाम जिन्होंने बिलावर्त अपने तलबा की कामयाबी के लिए दिल-ओ-जान से मेहनत की और बहुत सारे ख्वाबों को हकीकत का रूप देने में अपना किरदार अदा किया। और इन सबसे बढ़कर वालिदैन के नाम जिन्हें बचपन से उनके कामयाब होने के लिए उनकी तरबियत में ये चीज डाली। अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया सर मोहम्मद आतिफ अली ने, जो कि CEO नोआ है और उन्होंने आज तक नोआ के इस एक डेकेड से ज्यादा के सफर में नोआ को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। बिल्कुल ऐसा है। Sir, I would really like you to please address the students. We are waiting for you to hear a few words from you. सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद के जो स्टूडेंट्स हमारे इस दफ़ा पास हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, स्पेशली जो CSS में और साथ PMS में, PMS KPK PMS बलूचिस्तान, PMS सिंध, PMS पंजाब में जो एलोकेट हुए हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और उनके पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से मुबारक। दूसरी जो चीज़ है जो आप लोगों को पता है कि आजकल जो कोविड का इशू चला आ रहा है, इसकी वजह से हम लोग इसको ऑनलाइन आए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट को ना हो, क्योंकि आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने ये अलाउ नहीं किया हुआ। हाल तो हम लोग पुरानी अपनी सेरेमनी को मिस कर रहे हैं, लेकिन हम माजरत कहाँ हैं स्पेशली उन स्टूडेंट से जिनको अगर हम वैसे सेरेमनी कंडक्ट करते तो शायद वो एनवायरनमेंट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो जूम के थ्रू जो है ऑनलाइन सेरेमनी कंडक्ट करनी पड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा इस दफ़ा रिजल्ट रहा है लास्ट ईयर्स की तरह वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा है। हमारा जो रिजल्ट है इस दफ़ा CSS में स्पेशली जो है टोटल पूरे पाकिस्तान से ओवरऑल 214 लोग एलोकेट हुए हैं और उसमें से हमारे नोआ के जो है वो 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो एलोकेट हुए हैं और उसमें कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में स्पेशली जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें 12 स्टूडेंट्स हमारे एलोकेट हुए हैं
پھر پولیس سروسز آف پاکستان اس میں ہمارے جو ہے 6 اسٹوڈنٹ ایلوکیٹ ہوئے ہیں. فارن سروسز میں 5 اسٹوڈنٹس ایلوکیٹ ہوئے ہیں. اچھے گروپس میں ہماری ایلوکیشن زیادہ ہے. پھر آئی ایل ایس وغیرہ میں جو ہے وہ 15 اسٹوڈنٹس ایلوکیٹ ہوئے. نوا کا جو سفر ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نوا کو جو ہے وہ 2006-7 میں اسٹارٹ کیا تھا. ہمارا پہلا رزلٹ جو ہے وہ 2007 کا تھا. اس وقت ہمارے جو ہے وہ 7 اسٹوڈنٹ ایلوکیٹ ہوئے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ہر سال اللہ کا شکر ہے 2008 سے آن 50 پلس ہمارے اسٹوڈنٹ ایلوکیٹ ہوئے. اور اس بار جو ہے وہ ہم نے 600 فگر جو ہے وہ کراس کر لی ہے الحمدللہ. یہ لاسٹ ایئر ہمارے جو ہے وہ 540 اسٹوڈنٹس ٹوٹل بنے تھے جو پچھلے 12 سالوں میں ہماری ایلوکیشن ہوئی ہیں. اور اس دفعہ جو ہے ہمارے 600 سی ایس ایس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کراس ہوئے ہیں. ریمیننگ باقی پی ایم ایس وغیرہ یا دوسرے جو سروسز ہیں ان میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ جو ایلوکیٹ ہوئے ہیں. تو اگر ان کو بھی اگر ہم انکلوڈ کر لیں تو یہ آلموسٹ 800 پلس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پچھلے 10 to 12 ایئرس میں ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. ہمارا جو نوا کا مین جو نوا جس بیس پہ یہ بنائی گئی تھی اس کا مین پرپز یہ تھا کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن دیں, کوالٹی ٹیچرز پرووائڈ کریں. اور جو ہے وہ کوالٹی ٹیچر اسی جو فنامنا تھا یا اسی چیز کے اوپر ہم نے عمل کیا پچھلے 12 سالوں میں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہمارا جو ہے وہ رزلٹ بہتر سے بہتر ہوتا گیا. اس بار جو ہمارے رزلٹ میں کے پی کے ٹاپر ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. بلوچستان کے ٹاپر, بلوچستان سے اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا ہے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. پھر اے جے کے جو ٹاپر ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. پھر اس کے علاوہ جی بی کے جو سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. تو بیسٹ وشز ہیں سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو فردر جو ہے وہ مزید ترقیاں دے اور ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ. اور جو ہے ہم پھر میں معذرت کرتا ہوں کہ ہم اس کو جو ہے وہ لائیو جو سرمنی ہے اس کو کنڈکٹ نہیں کر پائے. انشاءاللہ جب یہ کووڈ والا ایشو ختم ہوگا تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو لائیو بلا کے جو ہے اس کو سرمنی کو جو ہے دوبارہ سے کچھ چیزوں کو کنڈکٹ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ وشز فار آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر عاطف اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری سرمنی کے چیف گیسٹ سر محمد علی بابا کے جن کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان سے ہے اور کرنٹلی وہ بطور ڈی آئی جی سرو کرتے ہیں. سر جب بھی آپ کو دیکھوں تو ایک شے میرے ذہن میں ضرور آتا ہے, رونق بس نہیں تھا کوئی تجھ سے پہلے, رونق بس نہیں تھا کوئی تجھ سے پہلے, رونق بس تیرے بعد نہیں ہے کوئی. Sir, we would really like you to say a few words to our newly allocated young officers. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's always a pleasure to interact with this August gathering of a cluster of young people, successful people, and the very ambitious young generation. First of all, I shall congratulate each one of you, those who attained such highest targets of their lives. So what we'll do, I'll just congratulate them, and I'll be talking late in the evening. So we'll talk at that time, and wish you all best of luck. And it's really pleasure to have all of you and have more successes and be happy in your endeavors. It's just the beginning of a very long journey. So I believe that all of you will be performing very well, and soon we'll be having a physical interaction as well, where I'll request Atif Saab to just, if we'll not be in a position to make a very big gathering, but at least we shall do a token sort of gathering where the successful our stars, our students, they are supposed to be there. So in a hall, in a small hall, where even we'll be there we shall meet, I believe, inshallah. Or wo bhi inshallah halat behtar honge, and we'll do it inshallah very soon. So inshallah, see you in evening. I'll just watch whatever is your proceeding, and I'll remain associated. Thank you very much, all of you. Thank you so much, Sir Mohammad Babakir. Thank you for honoring us with your presence today. ہم سول سروسز اکیڈمی کے اندر کمیونٹی پروگرام میں آخری دن میں ہمارے ایک سر تھے سر افضل خیال. انہوں نے آخری دن ہمیں بلا کر باری باری تمام بچوں سے ایک سوال پوچھا
सवाल पूछ रही है कि तुम लोग कहाँ से हो, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, कैसे कहाँ पढ़ाई की तुमने और सीएसएस तक कैसे आज पहुंचे। इन तमाम सवालों के जवाब में जब तुम लोगों ने आके अपने ख्यालात का इजहार किया, तुम्हारे बताया तो इसके लिए मोटिवेशन था कि मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो अपनी राह की तलाश में, अपनी मंजिल की तलाश में, उसको वो स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। अभी उसी अंदाज में मेरा हमारी भाई एक अफसर का नाम लेंगे तो जो कि हमारे साथ इस वक्त लाइव भी मौजूद है, हम उन तमाम लोगों से उनकी कामयाबी के सफर के बारे में तफसीलात जानेंगे जो कि हमारे यंग अपकमिंग ऑफिसर्स के लिए बेहद मुफीद। We will begin the ceremony with the students who got educated under Provincial Management Services of various provinces. Students will be unmuted and their video will be turned on. You will each have few minutes to express your sentiments. Please make sure that you remain within the allocated time limit for the smooth running of the ceremony. इस अकेडमी के हवाले से एक बात तो आप लोगों ने पिछली तहकीकात में भी सुनी होगी। मेरे उस्ताद थे वो ये कहा करते थे कि ये एक दरगाह नहीं है बल्कि एक दरगाह, ऐसी दरगाह जहाँ से किसी को एक दफा आने से फैज हासिल हो जाता है और किसी को बार बार आना पड़ता है फैज़याब होने के लिए। ऐसे ही फैज़याब होने वाली एक तालिबे इल्म जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, जिनका नाम हुदैबिया जमाली है, जिनकी एलोकेशन पीएमएस बलोचिस्तान के अंडर एज एन असिस्टेंट कमिश्नर हुई है, उनको दावत देना चाहूंगी कि अपने ख्यालात I'm Hudaybia Jamali from Balochistan province and I'm allocated as assistant commissioner from 2018 Balochis PCS batch. For me, CSS and PCS एक नर्व की गेम है जिसके लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है: डेडिकेशन, टाइम एंड हार्ड वर्क। पहली जो 3 चीज़ें हैं वो प्योरली फ्रॉम आपकी तरफ से होती हैं और जो 4th प्रॉपर गाइडेंस है जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सर फरीद से मिली, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया और हेल्प की हर लिहाज से। शुरू में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मुझे एज सच कोई आइडिया नहीं था। मेरा बैकग्राउंड BBA का था एंड नाउ आई एम डूइंग MBA। तो जब मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन मुझे नोवा से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन से थी या फिर पेपर चेकिंग से लेकर एवरीथिंग रिलेटेड टू CSS एंड द PCS। इन सब का कॉन्फिडेंस था और अलबत्ता आप जब पूरी लगन से मेहनत करते हैं और पेरेंट्स की दुआ आपके साथ होती है तो एनी हाउ आप सक्सेस हासिल कर लेते हो। एक बात कहूँगी कि PCS हो या CSS करने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी अच्छे या प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पढ़े हों। बलूचिस्तान में बहुत ही कम ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं और अक्सर वो स्टूडेंट्स PCS और CSS क्वालिफाई करते हैं और इवन टॉप करते हैं जिनका ताल्लुक ऐसे इलाकों से होता है जहाँ पे नेट की भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। At the end, I will say CSS और PCS को लाइफ और डेथ का हिस्सा ना बनाया जाए। अगर ये आपकी नसीब में है, किस्मत में है, तो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा। Thank you. So much हुदैबिया, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो CSS एस्पायरेंट्स हैं उनको आपकी बातों से ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है PMS बलूचिस्तान से मोहम्मद बकार खत्री साहब जो कि बतौर असिस्टेंट कमिश्नर एजुकेशन है। साहब प्लीज अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका ये सफर कैसा रहा, आपने क्या ऐसा किया कि आप इस कामयाबी से इंतजार में पहुंच गए? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली नोवा टीम के you people are doing a commendable job in this voyage of CSS and PMS. So when it comes to our journey, so it is a type of, we were on roller coaster, a journey that is a voyage, not journey. Depends on everybody's particular situation. So I think what I think for this service, we require unflinching commitment that we should have, and a sense of mission that we all must have for this service, because it is not a service but a career. So one has to work with invincible courage and do because our country needs the talented people, and so we have to serve our people. So civil service is really a journey for all of us,
and we should serve our Pakistan. And I'm proud to be a part of National Officers Academy, Islamabad. CSS is a journey. Jin logo ki ye journey hai, it is full of failures, because when we take example of so many aspirants and candidates, so we started from failure. That I appeared first of all in PMS, I couldn't get allocation, and secondly when I appeared, so I got second position. Same is the case with CSS. First I appeared, I failed, I flunked English essay, and after that now alhamdulillah I am allocated in the Inland Revenue Service. Ahmed Faraz rightly says, जो भी candidates या aspirants तैयारी करते हैं CSS के लिए, तो अहमद फराज का बहुत अच्छा शेर है इसके लिए कि शिकवा ज़ुल्मत थे शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते. तो you have to work on, ठीक है, आपको कमिटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए, that should be unshakable. I advise every aspirant that don't lose hope. It is finally game of nerves. You have to be strong. So it requires, again I say, invincible spirit, because we have seen ups and downs in this CSS exam, even in PMS. So you don't have to lose heart. Stay tuned and stay committed for this cause. Thank you so much, Fatar Akbar साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए. दावत देना चाहूंगी मुजाहिद जफर साहिब को कि वो हमें ज्वाइन करें. हमारे एक टीचर कहते थे कि नोवा इज जस्ट लाइक दरसगाह, बल्कि दरसगाह नहीं, एक दरगाह है. तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं. तो मुझे टीचर का नाम अभी तक याद है. और जब हम पहली ओरिएंटेशन क्लास लेने गए थे, तो हमारे वो जो एक सूफी सेंट टीचर एंड गॉड नोज पत्नी क्या क्या वो हैं, उन्होंने ये बात की थी. तो उस लेक्चर के बाद मैं सर के पास गया. मैंने कहा सर ये दरगाह पे मुझे बार बार आने की जरूरत पड़ेगी या बस एक बार ही काम हो जाएगा? उन्होंने कहा 5 मिनट मेरे साथ बैठो, अब बात करो, मैं आपको बताता हूँ. 5 मिनट बैठा. सर कहते हैं नहीं यार, आई गेस आपको एक दफे आने की जरूरत है, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सर जाते थे क्लास में, स्टार्ट में जाके एक बार सर सेंटर में खड़े हो जाते क्लास के, और उसके बाद नो लेक्चर के लिए कुछ बुक होती है, कोई स्लाइड होती है, नथिंग एट ऑल. सर ने एक टॉपिक शुरू करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, और उसके बाद सारा टॉपिक करवा के चले जाना. सो आई स्टिल हैव दोज मेमोरीज इन माय फ्लैशबैक्स, और इट्स रियली अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्राइड फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी. Ones who used to be my teachers are now, my senior colleagues, and I am expecting and I am hoping that in professional capacity, I can always look upon them. पूरे सफर में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपने किस तरह से टैकल किया? अच्छा, इन मुश्किलात में मुझे जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा, आई ग्रेजुएटेड इन 2017, और उसके बाद पीएमएस की पहली अटेम्प्ट आई, और मैंने अटेम्प्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एलोकेशन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो ऐसा कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा. मुझे एक ही मुश्किल का सामना करना पड़ा, और वो थी कंसिस्टेंसी. और आई गेस ये हर एस्पायरेंट को करनी पड़ती है, क्योंकि आपको दरमियान में इतनी एक डाइवर्जन्स आ रही होती हैं while you are preparing for your competitive examinations. और that is my tip for all the aspirants कि जब आप तैयारी शुरू करते हो तो do it with commitment, do it with consistency and do it with dedication. अगर आप 6 to 8 months CSS PMS की तैयारी को with dedication and commitment देते हो, तो I personally believe कि बहुत रेयर चांसेस होंगे कि you don't get through it. तो मेरे लिए और कोई ऐसा मुश्किल नहीं थी, क्योंकि मुझे तो सर ने पहले दिन ही बोल दिया था कि आपको इस दरगाह पे एक दफे आने की जरूरत है, आप फैज याब हो जाएंगे, उसके बाद आपने आना है, तो आपने वैसे सलाम करने आना है. सो अल्हम्दुलिल्लाह. इसके अलावा मेरे एस्पायरेंट्स के लिए भी ये एक ही टेक अवे होगी एज अ, आप कह लें कि एडवाइस, कि इफ यू आर एमिंग टू अचीव समथिंग, जस्ट स्टिक टू इट. आपको लगेगा यार आई कैन नॉट डू इट, मुश्किल है, समझ नहीं आ रही है, ये पार्ट ऑफ द जर्नी है. और मैं कहता हूँ कि वो बंदा पीएमएस या सीएसएस की तैयारी कर ही नहीं रहा जिसको ये वाइब्स नहीं आती कि आई एम नॉट डूइंग राइट, मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा. दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, और यही चीज होती है विच इज एंजॉयबल. इसी बारे में एक शेर भी है, वो कहते हैं, खैर पत्नी किसी मूवी का मुझे याद नहीं है, लेकिन वो शेर कुछ इस तरह का है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. सो दिस जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल, एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, और एंजॉय योर डेस्टिनेशन. वंस यू रीच योर गोल, उसके बाद तो फिर आपके मजे हैं, यू विल एंजॉय थ्रू आउट योर लाइफ. बट स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिटरमिन्ड एंड स्टे आपकी जो इंटेंशन है वो प्योर होनी चाहिए. सो दैट्स ऑल. एंड नोवा अकेडमी इज जस्ट लाइक होम, एंड द फ्रेटर्निटी ऑफ नोवा, दे ओन यू एज योर फैमिली ओन्स यू. आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, आप कहां से डिराइव करते हैं, आप इस बात पे क्या जवाब दोगे?
ऑफ मोटिवेशन. अच्छा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन में आई पर्सन, इसमें हर बंदे का पर्सनल होता है, मे बी मेरा पर्सनल कुछ और हो. हमजा शफकात साहब जो कि पार्ट ऑफ नोआ भी हैं, ही इज वन ऑफ, आई गेस बहुत सारे कैंडिडेट्स के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे. द वे ही एडमिनिस्टर इस्लामाबाद में, जिस तरह वो सिचुएशंस को टैकल करते हैं, जस्ट नॉट इन इस्लामाबाद, हर जगह पे. एक तो सर को मैं ना काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, तो जब भी सर की पोस्ट देखनी तो आई वाज लाइक यार कि वन शुड डू जॉब लाइक दिस मैन. उस टाइम तो पता नहीं था कि सर क्या चीज है. फिर मैंने कहा यार कि करते क्या है, पता चला कि अच्छा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन की हैं, तो हाउ टू ज्वाइन दिस सर्विस. उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा ये करते हैं. सेकेंडली फैमिली बैकग्राउंड आपका मैटर करता है, तो उसमें फिर रूरल बैकग्राउंड में आपको पता ही है ये चीज होती है. दैट इज माई पर्सनल, ये अब मे बी हर एक कैंडिडेट के लिए ना हो. और थर्डली जब आके एकेडमी में सर से मिला, सर अदनान बदर से, सर फरीद से, सर अली से, तो उन्होंने कहा यार कि यू आर मेड फॉर दिस सर्विस. सो उधर से मुझे लगा कि व्हाई आर दे सेइंग दिस टू मी. मैंने आगे खुद एनालिसिस किया कि सर ने ये बात क्यों कही थी. सर से नहीं पूछा मैंने कि सर आप क्यों कह रहे हैं. And I felt like yeah I should do that. I'm not an engineering kind of person. मैंने engineering की थी just like you, जैसे आपने engineering किया, now you are in Pakistan Administrative Services. I'm not an engineering kind of person. So all these things made me follow my dream. स्ट्रेंथ है कुछ खास सब्जेक्ट्स के, हमने रखे हैं हम इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें ना करें. आपका फ्रेंड्स की मिथ के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा कुछ है या फिर इसके लिए पता है? सब्जेक्ट्स के बारे में ना कुछ रूमर्स भी होते हैं, कुछ फैक्ट्स भी होते हैं. रूमर्स ये होते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड इसका डाउन जा रहा है, इसका अप जा रहा है, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप ऑप्ट नहीं करें, आप इसमें हो सकते हैं. अब इसमें एक चीज जो होती है वो ये होती है कि आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना होता है. से फॉर एग्जांपल आपने क्रिमिनोलॉजी के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, तो चाहे उसको 10,000 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे ही उसको ऑप्ट कर रहे हैं, तो दैट डजंट मैटर. आपको उसमें मेजर है एंड यू फील एट होम इन दैट सब्जेक्ट, यू शुड गो फॉर दैट. हाँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस तरह टाउन प्लानिंग हिट हुआ था, दैट इज अ फैक्ट. ठीक है, जिस तरह अभी इंटरनेशनल लॉ जो है वो हिट हुआ था, दैट इज अ फैक्ट. लेकिन अगर आपके इंटरनेशनल लॉ के अंदर मेजर है तो फिर तो आपको ज्वाइन करना चाहिए. और बाकी आपको अगर कुछ सब्जेक्ट्स चूज करने में कंपैरिजन में मसला होता है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस और आईआर, आप कंफ्यूज होते हो यार कि मुझे कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, दोनों में आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों के कोर्स कंटेंट सामने रखें, पिछले 5 सालों के पास पेपर अपने सामने रखें, उसमें से जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है यू कैन यू हैव सम बेसिक नो हाउ अबाउट दैट सब्जेक्ट. अगर पॉलिटिकल साइंस की आपको लगता है कि मुझे ज्यादा नो हाउ है तो गो फॉर दैट सब्जेक्ट. अगर आईआर की लगती है कि ज्यादा नो हाउ तो गो फॉर दैट. बाकी डेफिनेटली नोआ इज देयर टू गाइड यू फर्दर इन सिलेक्टिंग योर सब्जेक्ट्स. मुझे बताइए कि कितने को पसंद है इस टाइम पे? हाँ, मेरे दोस्त आई थिंक काफी सुन रहे हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि मीटिंग ज्वाइन करने का वेट कर रहे थे, एंड आई जस्ट सेंड देम द स्क्रीनशॉट कि आई एम ऑनलाइन, तो तुम लोग अपनी बारी का वेट करो. अभी हमारे पास नेक्स्ट टीम पंजाब से स्टाफ बिन खालिद. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो भी पार्टिसिपेंट हैं. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो नोआ का शुक्रिया, उन्होंने इज्जत अफजाई की इस ऑनर के लिए, और गिफ्ट के लिए भी शुक्रिया जो कि कल मुझे रिसीव हो गया. सबसे पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ. मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, और उसके बाद ये पीएमएस की मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, और प्रिपरेशन के हवाले से मेरा कोई खास बैकग्राउंड नहीं था. मतलब इंजीनियरिंग और सीएसएस की प्रिपरेशन या पीएमएस की प्रिपरेशन डिफरेंट फील्ड्स हैं. नोआ का क्या रोल था मेरी प्रिपरेशन में? तो सबसे पहले जो रोल था नोआ का, वो मैंने नोट भी किया हुआ था, वो था कि नोआ का सबसे जो अच्छी बात थी वो स्क्रीनिंग आउट थी, कि जो आपको टीचर्स हैं नोआ के, वो स्क्रीन आउट करके दे देते हैं कि कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी. तो इसके लिए आप आसान हो जाता है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करते और सिर्फ मतलब की चीज़ें पढ़ते. तो ये था. और दूसरा जो नोआ की सबसे अच्छी बात थी वो इंडिविजुअल गाइडेंस थी. इवन कि मैं रात को क्लास ख़त्म होने के बाद 10 बजे भी सर पास किया तो उन्होंने मतलब मुझे गाइड किया, और जिस तरह इंटरटेन करते हैं वो किया उन्होंने. मुझे मेरी प्रेसी वगैरह चेक की है, जो भी असाइनमेंट होती थी. सर मैं व्हाट्सएप पे प्रेसी भेज देता था, और वो वॉइस नोट में मुझे उनसे रिमार्क्स भी दे देते थे और बता देते थे किधर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ये सारा कुछ. तो इंडिविजुअल गाइडेंस भी मुझे मतलब नोआ की एक स्ट्रेंथ लगी कैंडिडेट्स के लिए. थर्ड जो मॉक एग्जाम थे उनका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. मैं नोआ में अपेयर हुआ, उसके बाद जो मॉक एग्जाम्स को डिस्कस करने के लिए सारा कुछ होता है उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. और फोर्थ नंबर पे जो सेशन के एंड पे एग्जाम से थोड़ी देर पहले रिवीजन लेक्चर्स होते हैं उनका बहुत फ़ायदा हुआ. और फाइनली जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू फेज में भी मैंने नोआ से इंटरव्यू की तैयारी की, मॉक इंटरव्यूज भी दिए,
वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम भी किया। तो फाइनली मैं डेडिकेशन की तरफ आ जाता हूँ, और उम्मीद काफ़ी मेरे ख्याल में टाइम भी पूरा हो गया होगा। तो सबसे पहले जारी बात है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने करम किया। उसके बाद पेरेंट्स, अम्मी ने बहुत दुआएं की हैं, और अबू ने भी इस तरह की कोई टेंशन नहीं होने दी। इसके अलावा टीचर्स, तकरीबन सब टीचर्स ने ठीक ठाक सपोर्ट किया है, अच्छा गाइड किया है। और फाइनली कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने भी मतलब गाइड किया, जैसे दानियाल हो गया, जुल्फी हो गया, उन्होंने अच्छा खासा गाइड किया। बदर और उस्मान वगैरह भाइयों की अच्छी खासी सपोर्ट हासिल गई। तो फाइनली बस मैं कंक्लूड करूँगा, उसमें जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी एडवाइस, जारी बात है ये थोड़ा छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ पे मुझसे ज़्यादा काबिल लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर सम अप करूँ तो मैं जो अब एस्पायरेंट्स हैं उनको एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले तो प्योरीफाई और इंटेंशन कि अपनी नीयतों को साफ रखें, और दूसरा एक्सीलेंस को परस्यू करें, और थर्ड अपनी थॉट्स में और अपनी राइटिंग में मेडिएशन लेके आएँ, और फाइनली आप बस डेविएट ना हो। देखिए मैं जब अभी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहूँगा कि मैंने इंटरव्यू का क्वेश्चन प्रिपेयर किया था कि आप जॉब में क्यों आना चाहते हैं। तो मैं इंटरव्यू पैनल को बताता था कि उसमें 4 रीजन हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि दिस वुड बी अ जॉब जिससे मुझे सैलरी मिलेगी और उससे मेरी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होंगी। और दूसरा मेरा ये था कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स भी किया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, तो इस जॉब में ये होगा कि मैं अपने नॉलेज को अप्लाई करूंगा। ये मेरी दूसरी रीज़न थी। थर्ड ये कि आप इस एग्ज़ाम के थ्रू अपने पीयर्स के अमंग डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। तो ये मेरी क्लियर इंटेंशंस हैं, इसमें मुझे कोई इधर उधर की कोई बात नहीं है शक वाली कि मैं क्यों सर्विस में आना चाहता हूँ। तो प्योरीफाई और इंटेंशन से मुराद मेरी ये थी कि आप बिल्कुल क्लियर रहें कि आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। तो नियतों का वैसे बदला अल्लाह ताला भी देते हैं, और फिर अल्लाह ताला भी करम करते हैं। क्या खूबसूरत बात की है साहब, छा गए आप। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। पीएमएस पंजाब से किरण शहजादी, इनके बारे में एक और बात ये भी है कि ये हमारी बैचमेट थी जो कि नॉन एलोकेटेड रही, लेकिन इन्होंने मेहनत को जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उन्होंने कामयाबी हासिल की। जी रमा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से हमकिनार किया। उसके बाद अपने पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनकी मेहनत है, अपने बहन भाई, ठीक है, ये सब द कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम जो कि हर वक्त मेरे साथ रही और आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। And obviously, I like to extend my profound gratitude to my teachers. जितने भी teachers हैं, Noah Academy as a whole, they played an instrumental role in my success. और आज यहाँ पर मैं इस मुकाम पर हूँ तो ये सब उन्हीं की मेहनत, उनकी दुआएं, अल्टीमेट गाइडेंस, their constant support, उनकी मोटिवेशन और इन सब प्रैक्टिस की वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचा दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन बैक इन 2017 में मेरी सीएसएस की फर्स्ट अटेम्प्ट थी। आई डिडंट गेट सीएसएस में तो मेरा रिटन डिक्लेयर नहीं हुआ था 2017 में, और उसके बाद 2018 मेरा रिटन क्लियर हुआ। आई वेंट फॉर इंटरव्यू और लेकिन एलोकेशन जो थी मेरी 2018 में नहीं हुई थी। तो ये जो फेज था ये मेरा बहुत एक डिफिकल्ट फेज था, लेकिन मीनवाइल आई अपीयर्ड इन पीएमएस 2019 और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसमें फिर एलोकेशन हो गई। तो जितना भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो कम होगा। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आई कांट एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड एंड आई कांट थैंक अल्लाह इनफ। हमारे साथ मौजूद हैं सर अदनान बदर। थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहले तो मैं तमाम ऑफिसर्स को जो कि सीएसएस और पीएमएस में एलोकेट हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नोवा के एलुमनाई के तौर पे मैं तमाम लोगों को जो है वो एक खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है तमाम लोगों की। तो जितने पीएमएस ऑफिसर यहाँ मुझे सुन रहे हैं, बाकी तमाम लोग जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना है और कर चुके हैं, मैं तमाम लोगों को पीएमएस फ्रेटर्निटी की तरफ से वेलकम करता हूँ। और आप सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विस का हिस्सा बनाया है और आपने आगे पूरी जो जिंदगी आपने बड़े अच्छे अंदाज से सर्व करना है और एक बहुत अच्छी सर्विस है। तमाम सर्विसेज अच्छी होती हैं, तमाम सर्विसेज का अपना अपना एक वर्किंग डायनामिक होता है। ऐसे ही पीएमएस और सीएसएस का अपना वर्किंग डायनामिक है, अपना उनका एक वर्किंग स्टाइल है। तो आप कभी ये ना समझिएगा कि बाकी सर्विसेज जो है वो अच्छी नहीं है, बाकी जो लोग काम करें वो भी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और आपकी सर्विस भी अल्लाह ताला ने, आपका जो वर्किंग डायनामिक है वो इसलिए डिफरेंट है कि आपको बाकी जॉब से ज्यादा काम करना पड़ेगा और जितनी आपने पीएमएस और सीएसएस में मेहनत की है
آپ کو اس سے کہیں زیادہ جا کر آگے فیلڈ میں محنت کرنی پڑے گی, اس سے زیادہ کہیں جا کے آپ کو اپنی انرجی جو ہے وہ وہاں پہ صرف کرنی پڑے گی, پھر جا کے آپ کی جو ہے پبلک سروس ڈلیوری ہوگی. اور یہاں پہ بیوروکریٹ کا ورڈ استعمال کر رہے تھے, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب سول سرونٹس ہیں, تو اس مائنڈ کے ساتھ ہم فیلڈ میں جائیں تمام لوگ کہ ہم ایک سول سرونٹ کے طور پہ عوام سویلین اور ہم ان کے سرونٹ ہیں, ہم ان کو سرو کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. ہم یہ والا مائنڈ لے کے جائیں تو انشاءاللہ تعالی سروس ڈلیوری جو ہے وہ بڑے اسٹینڈرڈ کی آپ لوگ کر پائیں گے. اور جتنے بھی ماشاءاللہ سے لوگ ایلوکیٹ ہوئے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, مجاہد ظفر ہیں اور سعد ہیں اور باقی جو عارف قریشی ہیں. مجاہد ظفر تو میں خود پرسنلی بڑا اچھا, ان کو میں نے ٹائم بھی دیا ہے, پڑھایا بھی ہے, بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, بہت ہی محنتی ہے. اس طرح سلمان منشا, میڈم ارم شہزادی اور باقی تمام لوگ جن کے میں نام نہیں لے سکا, وسیم مہر سندھ سے جو بات چیت کر رہے تھے ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ وقار جو اپنا یہ اکبر کاکڑ صاحب تھے, وہ بات چیت بڑے اچھے اور آفیسرز ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ بہت اچھے انداز سے سرو بھی کریں گے. اور سب سے آخر میں نیشنل آفیسر اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں, آج اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ میں اپنے ملک کو جو ہے وہ سرو کر رہا ہوں. اور باقی لوگ بھی, تمام لوگ بھی اسی نیشنل آفیسر اکیڈمی کی وجہ سے ہی, آج ان کے ٹیچرز کی محنت کی وجہ سے باقی تمام ٹیچر جتنے بھی ٹیچر ہیں جو اپنا یہاں پہ پڑھا رہے ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کا کردار یقیناً خراج تحسین کا مستحق ہے. اور میں نے کہیں بھی, میں لاہور میں بھی سرو کرتا رہا اور میں نے ڈفرینٹ اکیڈمیز کو دیکھا, اور بھی میں نے بہت جگہوں پہ اکیڈمیز دیکھی, ڈفرینٹ قسم کے زوم پہ گروپس بنے ہوئے دیکھے, لیکن جتنی سینسیریٹی کے ساتھ یہاں نیشنل آفیسر اکیڈمی کے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی انرجی اپنے اسٹوڈنٹس پہ لگاتے ہیں, ایسا کسی بھی ادارے کے اندر نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ پروفیشنلزم بھی ہے نیشنل آفیسر اکیڈمی کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی پروفیشنل جو ان کی ریسپانسبلٹی ہے اس سے ہٹ کر بھی وہ لوگ جو ہیں اپنے تمام جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ پرسنل جو ہے لیول پر جا کر کوآپریٹ کرتے ہیں, پرسنل لیول پر ایفرٹ کرتے ہیں. میں اس لیے اس پورے ادارے کو اپنے لوگوں کے لیے بلیسنگ جو ہے وہ قرار دیتا ہوں. اور جتنے لوگ ابھی ایلوکیٹ نہیں ہوئے اور ناٹ ایلوکیٹ ہوئے ہیں, وہ لوگ بھی بالکل پریشان نہ ہوں. جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ بولا ہے ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر ایلوکیٹ ہوئے ہیں, باقی تمام لوگ ایسے ہیں جو سیکنڈ اور تھرڈ میں ایلوکیٹ ہوئے ہیں, اور جن کی آخری اٹیمپٹ تھی وہ ایلوکیٹ نہیں ہوئے وہ بھی بالکل پریشان نہ ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس نہیں ہوا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جائے گا. اس سے پی ایم ایس اور سی ایس ایس لیول کی اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ سروسز یہاں پنجاب میں اور پاکستان میں ہیں کہ جن کو آپ, جن کے اندر جا کے آپ کو وہی اسٹیم اور وہی رسپیکٹ اور وہی پریسٹیج ملے گی. تو میں آپ تمام لوگوں کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں, اور اپنے لیے نیشنل آفیسر اکیڈمی کا شکر گزار ہوں, اور نیشنل آفیسر اکیڈمی کی تمام فیکلٹی کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہر سال اسی طرح کے جو ہے وہ انہوں نے جو ایک پرمپرا ہے اس کو چلایا ہوا ہے, اور اچھے آفیسر جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں ہر سال. اور میرے سامنے سر اظہر صاحب بیٹھے ہوئے, میں ان کا نام لینا بھول گیا تھا. سر اظہر صاحب نے بڑا اچھا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, اچھے انداز سے اپنا انہوں نے رول پلے کیا ہے. میرے ساتھ جو ہے وہ باقی بھی تمام فیکلٹی کے لوگ موجود ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسپیشلی میں سب سے آخر میں دوبارہ سے جو پروونشل مینجمنٹ سروسز کے آفیسرز ہیں جن کی ایلوکیشن ہوئی ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وہ تھوڑے سے لکی اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے صوبے کے اندر اور اپنے جن لوگوں کو وہ جانتے ہیں ان کے اندر رہ کے سرو کرنا ہے. تھوڑا سا چیلنجنگ ہے لیکن انٹرسٹنگ بہت زیادہ ہے. آپ کو جب اپنے صوبے میں اپنے ہی علاقے کے ساتھ جب آپ وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آپ کہیں دور چلے جائیں گے. آپ کہیں دور بھی جائیں گے تو اپنے ایریا کے اندر ہی آپ کہیں نہ کہیں ہوں گے, سرو کر رہے ہوں گے. تو اس کو یہ کر کے آپ کو بہت جو پروونشل سروسز کے آفیسر ہیں ان کو یہ سب کر کے بہت مزہ آ رہا ہوگا اپنے علاقہ کے اندر سرو کر کے. لیکن چونکہ ان کے اپنے جاننے والے لوگ ہوں گے سارے وہاں پہ ان کے انفورسمنٹ کے اندر بہت سارے پرابلم بھی آئیں گے, لیکن یہ بھی ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حصہ بنایا ہے. اور میں آخر میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں, اسپیشلی میڈم فرا کا, ہوسٹ کا, اور اسپیشلی کامران صاحب کا. بہت شکریہ سر. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ سی ایس ایس کے طلباء کو یو ایس ہسٹری بھی پڑھاتے ہیں تو آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا اگر بتائیں کہ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو یو ایس ہسٹری ہے بہت ہی ٹارگیٹڈ سبجیکٹ ہو گیا ہے, اس میں نمبر نہیں آتے, وہ نہیں رکھنا چاہیے. اینڈ سنس موسٹ آف آڈینس آر سی ایس ایس ایسپیرنٹس,
मैं जानना चाहूंगी आपका क्या ख्याल है इस बारे में, उनके क्यों हुए सिस्ट में 2018 में नंबर नहीं आए, और अगले सालों में आपका क्या ख्याल है कि सब्जेक्ट रखना चाहिए या नहीं? मैडम प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक बना देते हैं, एक बात मशहूर कर देते हैं कि सब्जेक्ट बड़ा नंबर देने वाला सब्जेक्ट है, यूएस हिस्ट्री है या सोशियोलॉजी है या जेंडर स्टडी है या टाउन प्लानिंग या अर्बन मैनेजमेंट है, जब हम एक बात फैला देते हैं कि ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स की नेचर है, स्टूडेंट उस सब्जेक्ट के अंदर जो है बड़ा लेथार्जिक एटीट्यूड अपना लेते हैं, उस सब्जेक्ट को स्टूडेंट कम पढ़ते हैं, तो तभी स्टूडेंट उस सब्जेक्ट के अंदर कम नंबर लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करें, यूएस हिस्ट्री भी ऑप्ट करें, आप और भी सब्जेक्ट्स आप रखना चाहें तो ऑप्ट करें, लेकिन जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें अपने माइंड पे ये बात ना लेके आएंगे बड़ा आसान सब्जेक्ट है और मैं खुद ब खुद कर लूंगा। हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो जिन लोगों के नंबर कम आए हैं वो अपना थोड़ा सा मुहासबा भी करें कि हमारे किस किस जगह पे हमारी कमी रह गई थी। यकीनन जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए थे, जिन लोगों के नंबर थोड़े से कम हैं, उनसे अगर आप बातचीत करें तो वो बताएंगे कि उनका एक क्वेश्चन जो है वो स्किप हो गया था, उनका 1.5 क्वेश्चन जो है वो स्किप हो गया था, उन्होंने प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। पेपर अटेम्प्ट करते, प्रॉपर प्रिपरेशन करते तो हम यकीनन अच्छे नंबर ले सकते थे। तो इसलिए तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर जो सब्जेक्ट्स जो है आपके टीचर्स आपको बता रहे हो उन्हीं को ऑप्ट किया करें, क्योंकि उनको ट्रेंड्स का पता होता है, और जब वो ऑप्ट कर ले तो उसको ये ना कहें कि बड़े आसान सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ने की पूरी कोशिश किया तो तब जाके अच्छे नंबर आएंगे। ऐसे अच्छे नंबर नहीं आ जाएंगे कि ये कहने से कि सब्जेक्ट बड़ा आसान है और मैं इसको। सर क्योंकि जो हमारे आपके जूनियर फेलोज हैं वो आपको अभी सुन रहे हैं, तो आप उनको अगर ये बता दें कि जो एसी शिफ्ट है उन्हें कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनका दामन कभी भी नहीं छोड़ना कि वो कामयाब अफसर बन सके। आप इसे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें तो प्लीज बताइएगा हमें। जब आप सीएसएस और पीएमएस की तैयारी कर रहे होते हैं, जो आपको फैक्टर्स सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन के दौरान चाहिए होते हैं, वही फैक्टर्स आपको फील्ड में चाहिए होते हैं। तभी इसमें बहुत सारे, जिस तरह मुजाहिद ने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने वसीम ने बड़ी अच्छी बात की, और बाकी लोगों ने, मैं जिनके नाम नहीं ले सकता, उन सब ने ये बातें रिपीट की कि नर्व्स की गेम है, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने करना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, और ये तमाम जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, हार्ड वर्किंग करनी है आपने, और आपने डिस्प्यूट मैनेजमेंट करनी है, आपने अपने आप को भी मैनेज करना है, अपने हेल्थ को भी मैनेज करना है, अपनी स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, और आपने पब्लिक को भी अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप ही एक जगह के ऊपर, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्टी कमिश्नर होते हैं, आप ही उसी जगह का हुकूमत की तरफ से एक फेस होते हैं, आप उस जगह का, हर बंदा आपसे बातचीत करना चाहता है। तो इसलिए जो फैक्टर्स आपको प्रिपरेशन में चाहिए थे, वही सेम फैक्टर्स जो है आपको जो है वो आपके अंदर होने चाहिए जब आप इस तरह की जॉब के अंदर जाते हैं और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी लोग ये जानना चाहते होंगे कि हमें क्या मिलेगा, हमें कौन सी गाड़ी मिलेगी और कितने गनमैन मिलेंगे। ये सब लोग जो है वो जब सर्विस में आने से पहले ही वो अपने गाड़ियों के साफ देख रहे होते हैं, और पुलिस वाले जो पीएसपी में गए हैं तो वो वर्दी जो है वो देख रहे होते हैं। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं से हमारी पहचान होती है। लेकिन जब आप फील्ड वर्क में आ जाते हैं तो आपको इन चीजों को भूल जाते हैं, आप इन चीजों से बियॉन्ड चले जाते हैं। फिर आपके पास ये सब कुछ होता भी है तो तब आप इन चीजों को फील नहीं कर सकते प्रॉपर, क्योंकि आपको इतने सारे काम होते हैं, आप इतने मसरूफ होते हैं, आपने इतनी रिपोर्टिंग करनी होती है, आपके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है कि आप उन चीजों को जो है वो अपना प्रॉपर अंदाज से जो है वो नहीं इंजॉय कर सकते। लेकिन फिर भी आप इस सर्विस को छोड़ भी नहीं सकते, आप ना इसको छोड़, आप इस सर्विस को भी इंजॉय कर रहे होते हो और अपनी तमाम चीजों को भी इंजॉय कर रहे होते हो। अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत बहुत ही अच्छी सर्विस में आप लोग आए हैं। अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली है, समझ लें आपने, तो अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया है, ऐसे समझ लें आपने। तो आप सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, और अपने तमाम जो आपकी जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, वो आपको इस स्टेज पर लेके आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं दोबारा से मैं चूंकि हर दफा ही वो नोवा अकेडमी का नाम ले आता हूँ अपनी उसके अंदर, चूंकि मेरा सब कुछ ही नोवा अकेडमी है, तो मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि नेशनल ऑफिसर अकेडमी का हमें तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस तरह की हेल्दी डिस्कशन करने का मौका दिया, और हमें आपस के अंदर एक्सपीरियंस को जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस आपस में शेयर करने। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल तलबा के लेवल पे आके उनको समझाने की कोशिश की है कि उन्हें किस तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ेगा, किस तरह चीजें फेस करनी पड़ेगी, उन्हें किस तरह की आसाइशों की ख्वाहिश है और किस तरह से
उन आसाइशों को हासिल करेंगे। इन सारी बातों में आपने जो बताया बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए, और इंशाल्लाह हम आपकी इन सारी जो आप हमें सिखा रहे बातें इनसे हम आगे भी फैज़याब होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फरमान। नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो है समीना बशीर। समीना बशीर जिनका ताल्लुक पंजाब से है और वो PMS पंजाब के तहत एज एन असिस्टेंट कमिश्नर मंतखब हुई हैं। सो गुड सीइंग यू टुडे एंड वी रियली फील ऑनर्ड कि आपने आज हमें ज्वाइन किया है। प्लीज अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आज आपको कैसा महसूस हुआ। Thank you very much. Well, first of all, hello everyone. Assalamu alaikum. And thank you for granting me audience today. मेरा नाम समीना बशीर है और आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड आई स्टैंड 33rd इन PMS 2019. और सबसे पहले मैं NOA की इस नोबल जेस्चर को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, which basically give opportunity for qualifiers like us to share our experience and speak from personal experience. इसके बाद आई थिंक सब टीचर्स वगैरह सब ने बहुत मेहनत की हम लोगों के साथ हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो लोग हमसे ज़्यादा खुश होंगे अगर हम खुद को डाउन टू अर्थ ह्यूमिलिटी के साथ सर्व करने की इंटेंशन रखेंगे। तो यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ, इट्स दैट बड़ा क्लीशे सा लग रहा है जो मैं कहने वाली हूँ, बट इट इज़ एक्चुअली दैट बिलीव इन योरसेल्फ. Whatever you are, believe in yourself, because I strongly believe that every one of us are endowed with a essence, with equal potential. तो आपके अंदर already potential है, it's just that you need to realize it. आप उसको realize करें, आप उसको acknowledge करें और उसके साथ काम करें, और everything will be fine inshallah. अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो जाता है, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं होती। अगर किसी को failures मिल रहे हैं, किसी को rejection मिल रही है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, हम सबको मिलती है। हम सब इस जर्नी के आते हैं from difficulty, any obstacles, any barricades which come along the way. Every journey is not rosy actually. So आप सबको बिल्कुल ease expect नहीं करना, consistent रहना है, dedicated रहना है, वही वाली बातें करनी है, practice बहुत करनी है, and everything will settle down on its own. हम aspirants को जो अभी हमें देख रहे हैं that they need to believe themselves. सबके अंदर potential होता है, सब इक्वल होते हैं पोटेंशियल में, सब के अंदर एसेंस होता है. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू एक्चुअलाइज दैट एसेंस. हम उस एसेंस को एक्चुअलाइज करते हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं. फिलोसफिकल लग रहा है बट इट इज द रियल थिंग इन लाइफ. और सेकेंडली द सेकेंड पॉइंट इज दैट नो जर्नी इज एक्चुअली रोजी इन नेचर. हम लाइफ से बहुत आसानी एक्सपेक्ट करते हैं, इसी तरह ये कॉम्पिटिशन भी आता है. हमें नहीं लगता कि हम कभी फर्स्ट में फेल हो जाते हैं, कभी सेकेंड हमारी नहीं लगती. लेकिन द थिंग इज कि आपको you have to stay consistent, you have to stay motivated, you have to stay dedicated actually, and you need to be very confident about whatever you have inside. You need to believe in your potential. This is what will take you to your every dream, every destination, or whatever you want in your life. आप प्लीज ये बताइए कि आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन और आपकी डेडिकेशन का जरिया क्या था? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, कहाँ से आती मोटिवेशन. I am a kind of person that who believes basically कि motivation comes from within. आपके अंदर से आती है motivation. If you really want to do something and you have everything which is needed, तो आप कर जाएंगे. आपको बस अपने अंदर देखना है और you have everything inside. Your happiness, your success, your potential, everything is lies within. आप अपने अंदर देखिए, आपको motivation मिल जाएगी. मिसबा वहीद का ताल्लुक KP से है, जिनकी एलोकेशन भी एज असिस्टेंट कमिश्नर हुई है. जी मिसबा. सबसे पहले तो ये कि बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आज अपने टीचर्स के सामने बैठ के गाइड करेंगे एस्पायरेंट्स को और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उस पाकज़ात का जिसने ये मुकाम दिया है. और मैं यही समझती हूँ कि ये सब कुछ जो है अपने पेरेंट्स की दुआओं से और अपनी वालिदैन की जो हमारे लिए दुआ थी वो रंग ले आई है. और मेरे उसासा और नोआ एकेडमी की पूरी एडमिन टीम ऑफ कोर्स जिन्होंने हमें बेयर किया और हम लोगों को वक्त दिया और सबसे ज़्यादा कि हमें गाइड किया हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ. तमाम एस्पायरेंट्स आप इस टाइम सुन रहे हैं, वो बार-बार एक मसला फेस करते हैं कि वो जैसे ही कुछ ना कुछ एक आध फेलियर उनकी जिंदगी में आता है तो वो कॉन्स्टेंटली पीछे चलना शुरू कर देते हैं. वो डर जाते हैं, वो खेलते नहीं हैं खुल के. आप उनको क्या कहेंगे इस पॉइंट पे? एस्पायरेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ना इंट्रोडक्शन दूंगी स्ट्रगल का कि मैंने कैसे किया. जो मेरी स्ट्रगल पीरियड था ना, सिंस 2013 आई वाज स्ट्रगलिंग एंड आई टुक माय ऑल CSS अटेम्प्ट्स
and luckily in my first attempt I passed PMS, but unluckily that time, but I would not say that was unlucky to me, but मेरे लिए कुछ बेहतर था इसलिए मुझे थोड़ा देर से मिला. I couldn't be allocated in my last attempt of CSS and in my first attempt of PMS. तो मैं समझती हूँ कि अपना वो जो मेरी स्ट्रगल की जो फेज थी ना, उससे मुझे कुछ लेसन्स मिले हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि मैं एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करूँ, कि मैंने अपने लिए ना उनमें से जो लेसन्स निकाले हैं ये कि 4 पिलर्स हैं हमारी इस CSS और PMS के एग्जाम को क्रैक करने के. सबसे पहली बात तो ये कि कंसिस्टेंसी विद पंक्चुअलिटी. कंसिस्टेंसी के जो भी आप करो उसको कंसिस्टेंटली करो. ये नहीं कि आप अपने आप को बंद कर लो एक कमरे में 24 घंटों के लिए, 20 घंटों के लिए और कहो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. नहीं, आप 7 से 8 घंटे के लिए अपने आप को फोकस रखें अपनी स्टडीज पे, जो भी आप कर रहे हो उस पे, और रेगुलरली करो. ये नहीं कि आज स्टडी किया और नेक्स्ट डे आप बिल्कुल गायब हो जाओ. कंसिस्टेंटली करो जो भी करो. और सेकेंडली ये कि आप फेथ इन योरसेल्फ, व्हाटसएवर यू डू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो. मतलब आप ही हो जो ये करोगे और दूसरा कोई नहीं है. और यकीन माने कि आपकी इस कोशिश से कामयाबी तक के सफर में कोई चीज़ अगर हायल होती है तो आप खुद हो, और दूसरी या तीसरी कोई चीज़ नहीं होती है. चूँकि CSS PMS के एग्जाम में हमारे पास जो होता है टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है प्रिपरेशन का, फिर प्रिपरेशन के बाद आपका रिजल्ट आने तक का जो टाइम पीरियड होता है, तो आप उसमें ना थोड़े फेडअप हो जाते हो. लेकिन आपने क्या करना है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है और जो है ना आप कहते हो ना वेरी पॉजिटिवली आपने इस चीज़ को अचीव करना है. थर्डली मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीज़ है कि आपने एग्जाम की मेथोडोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है. एग्जाम की मेथोडोलॉजी आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि 5 ईयर पेपर्स निकालोगे, आप उसमें एग्जामिनर की साइकी को अंडरस्टैंड करो कि व्हाट ही इज डिमांडिंग यू एंड हाउ यू हैव टू आंसर हिम. सॉल्व द पेपर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. और वो आप अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को, आपके जो भी मेंटोर्स हैं उनको चेक करवाओ प्रॉपर्ली, और अपने आप को प्रॉपर एग्जामिनेशन के हॉल का जो सिनेरियो होता है उसमें से गुजारो. कल को आप जो हो जब एग्जाम में जाओ तो ऑल टुगेदर इस तरह ना हो कि मैं आज पहली बार आया हूँ. और इस सोच के साथ जो हाफ हार्टेडली आप बैठते हैं ना एग्जाम में, इस सोच के साथ ना बैठे चलो बैठ के देख लेते हैं एग्जाम, देखते हैं CSS का एग्जाम कैसा होता है, PMS का एग्जाम कैसा होता है. इस तरह मत करो. ऐसे करना है तो 3 घंटे के लिए पेपर एक लेके बैठो और आप सॉल्व करो. ये बहुत कीमती चांसेस होते हैं और रेयर होते हैं. इनको बड़ी अक्लमंदी के साथ तैयारी करने के बाद आप मैदान में उतरें. और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे आप कहते हैं प्लानिंग के बगैर तो आप अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते हैं. तो मैं समझती हूँ कि बेस्ट प्लानिंग प्रोवाइड्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स. मैं अब्रॉड में थी जब मुझे मेरी सिस्टर की कॉल आई, मुझे आज भी याद है, एंड शी टोल्ड मी कि आपके पास तकरीबन 1 महीना है, आपका डेट शीट आ गई और आप वापस आ जाओ. तो मैं अपना वीज़ा कैंसिल करवा के वापस आई पाकिस्तान, और मेरे पास सिर्फ 28 दिन थे जब मैंने प्रिपेयर किए अपने ऑप्शनल्स. बेसलाइन मेरे पास नॉलेज तो सारा मौजूद था, तो मैंने इस बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट भी किया था कि मैंने सारे नए ऑप्शंस उठाए थे. तो मैंने उन ऑप्शंस को 28 दिनों में तैयार किया था, और इसी स्ट्रेटजी के साथ, इसी प्लानिंग के साथ कि मैंने अपने आप को स्मॉल टास्क दिए, डेली टास्क दिए, वीकली टास्क दिए, और फिर उनको चेक आउट किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ और मैं कर रही हूँ. और मुझे जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन का जो लेवल अचीव होता था ना, मुझे लगता था मेरी आधी तैयारी तो ऐसे ही. तो मेरा यही मैसेज है एस्पायरेंट्स के लिए. और वन लास्टली मैसेज जो मैं अपने एस्पायरेंट्स को देना चाहूँगी कि आपने जो है ना बिलीव करना है अपने ऊपर. यू हैव टू से दैट आई कैन एंड आई विल. कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा. इंसान के लिए वो नहीं है मगर वही है जिसके लिए वो कोशिश करते हैं. तो आप जितनी कोशिश करेंगे ना, आपको उसका नतीजा जरूर मिल जाएगा. और मैं तो यही समझती हूँ कि मेरी जो कोशिश है वो रंग लेकर आई है. और मगर आपने क्या करना है कि खुद को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आना है. एज सुन एज यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आपको ना जो कामयाबी है वो आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ग्रैब इट एंड अचीव इट. दैट्स इट. सलमान मंशा साहब हमारे साथ हैं. मैं पहली दफ़ा नफीस भाई के साथ, नफीस भाई मेरे कज़न हैं, नोआ आया तो बोर्ड पे जो है ना एक लाइन लिखी मैंने देखी कि वेयर ड्रीम्स कम ट्रू. तो शुरू में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये बड़ा खोखला सा एक नारा लगा जिस तरह अकेडमीज लगाती हैं कि वेयर ड्रीम्स कम ट्रू. मैंने कहा कि ये क्या है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मेहनत की. यहाँ भी जो टीचर्स थे उनको अपना काम चेक करवाते रहे. ये सारे टीचर्स जो थे, जितनी दफ़ा भी इनको काम चेक करवाया तो इनका कहा गया एक एक जुमला, इनकी एक एक बात
वो मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी। तो इन लोगों का मिजाज ऐसा था, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो बंदा इनके पास काम ज़्यादा करके लाता था तो ये उसका काम उतनी ही तसल्ली से चेक करते थे और उसको उतना ज़्यादा इनकरेज किया करते थे। तो जब मैं तैयारी करके मुकम्मल नोवा से निकला तो 2015 में मैंने PMS दिया, मेरा रिटन पास था 2015 में, लेकिन उस वक्त मैं एलोकेट नहीं हो सका, तो मैं कई दफ़ा फेल हुआ। मैं इस पूरी जर्नी में कई दफ़ा डिसहार्ट हो जाना। तो अक्सर जब मैं नोवा में था तो सर मुझे एक बात कहा करते थे कि चौधरी साहब तुसी बहुत उत्ते जाना है। तो मैं जब फेल होता था तो मैं बड़ा परेशान हुआ करता था और मैं कहता था कि यार ये मुझे सर क्यों कहते थे, एक बंदा जो अभी तक एक एग्ज़ाम नहीं पास कर सका तो कैसे वो इतना ऊपर कैसे जाएगा। मेरा ख्याल है सर ये ऐसे ही बात कर देते थे, लेकिन ये बात जो है वो एंड तक मेरे साथ चलती रही। तो ये मुझे मोटिवेशन देती रही कि नहीं सर ने ये कहा था, कुछ तो रीज़न होगी उसकी। तो लेकिन बात ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, अल्लाह पाक ने आपके लिए एक टाइम फिक्स किया हुआ होता है। जब मेरा टाइम आया तो फिर PMS 2017 जो कि PMS 9 है अभी, तो उसमें फिर मेरी 15th पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। कल जब मुझे नोवा की तरफ से गिफ्ट मिला, जब मैंने उसको खोला तो उसमें एक शील्ड थी, तो जिस पे लिखा हुआ था कि वेयर ड्रीम्स कम ट्रू। फिर मुझे मतलब आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट कि फिर मुझे अंदर से फील आई कि सर की बात और ये बात दोनों कितनी सच हैं। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आई एम थैंकफुल टू नोवा, और वहाँ पे जितने भी लोग थे बहुत प्यारे लोग, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ आयशा बदर। सबसे पहले तो मैं PMS में अपनी एलोकेशन के बारे में ये कहूँगी कि अल्लाह पाक का बहुत करम कि उसने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया और आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी सपोर्ट किया और एवरी स्टेप पे मुझे गाइडेंस दी। और मेरे स्कूल टीचर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी तालीमी बुनियाद रखी और उस बुनियाद को मजबूत भी किया। और उसके बाद अगर मैं स्पेशल थैंक्स करूँ तो मेरी अम्मी का जो हर कदम पे मेरे साथ थी, अब्बू हमाद भाई इज ऑलवेज लाइक यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। नोवा के साथ मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो आई कंप्लीटेड माई फार्म डी फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2018 एंड आई ज्वाइन नोवा इन अगस्त 2018। तो 2019 में एग्जाम्स आने थे एंड आई हैव वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो कि 6 महीने से भी थोड़ा था। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या करना है, कैसे करना है, एंड आई हैड नो गाइडेंस एट दैट टाइम एंड नोवा प्रोवाइडेड मी दैट गाइडेंस कि हाउ आई हैव टू डू दिस। सो दैट वाज ऑल वेरी हेल्पफुल ना। मेरी इंग्लिश में शुरू में बहुत गलतियाँ होती थी, इन अ सेंस नॉट ग्रामेटिकल एरर्स बट टेक्निकल मिस्टेक्स जो कि एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती कि ये मिस्टेक्स ठीक करो, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश बहुत एररलेस हो गई थी। और आफ्टर व्हेन आई क्वालिफाइड माय रिटन तो उसके बाद उन्होंने मोटिवेटेड मी कि हाँ तुम कर सकती हो, यू कैन डू दिस, और उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि दैट यू कैन बी अ सिविल सर्वेंट और एंड दैट कॉन्फिडेंस मीन्स अ लॉट। फिर उसके बाद अगर मैं CSS न्यू एस्पिरेंट्स के लिए बात करूँ तो जैसे मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम पीरियड था एंड 2019 जो था उसमें मेरी CSS की भी पहली अटेम्प्ट थी और PMS की भी पहली अटेम्प्ट थी। तो एक दफ़ा सर हमजा सेड टू मी कि आप जो है लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो मैं हमेशा जो है सुबह पढ़ती थी, दिन को मैं सारा टाइम लिखती थी, जिस सब्जेक्ट की मेरी शाम को क्लास होती थी और उस टीचर को मैं जाके चेक करवाती थी। तो डेली की बेसिस पे लिखना एंड फिर सब चेक करवाना, और फिर नोवा के टीचर्स जैसे मेरी गलतियाँ निकालते थे तो इट हेल्प मी अ लॉट। इंटरव्यू के दौरान जो है माय इंटरव्यू वेंट वेरी टफ। शुरू वाला इंटरव्यू तो मेरा बहुत इजी था, मेरी डिग्री से रिलेटेड पूछा एंड आई आंसर्ड देम वेरी वेल। फिर उसके बाद देन दे केम टू डिफरेंट टॉपिक्स एंड रिलीजन एंड एवरीथिंग ना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहती हैं, एंड आई आंसर्ड देम कि सर आई वांट टू सर्व पीपल। कहते हैं कुछ और। तो फिर वो करते करते आई सेड कि सर दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ मी, कि मैं अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहती हूँ। उस टाइम तो वो कहते हैं चलें ठीक है मैडम। आखिर में फिर अगेन दे केम टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फिर अगेन उस पर मेरा उन पर बड़ा टाइम लगा। तो दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट एंड सर नासिर दुरानी वाज सिटिंग राइट विद मी। सो उन्होंने ये इस काम पे, इस बात पे जो है ना वो मुझे बहुत गोल गोल घुमाया एंड दैट वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू। नोवा की फैकल्टी में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई न्यू एस्पिरेंट आता है वो उसको बच्चे की तरह लेते हैं। तो सो नोवा लव्स यू लाइक अ फैमिली। वन सेड टू मी कि आपका जो है राइटिंग स्किल अच्छा है मैडम, आप तो माशाल्लाह कर लेंगी। तो मैं कहती थी मैं किधर कर लूँगी,
تو اور واقعی مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مجھے ٹیکنیک سکھاتے تھے. تو دیٹ واز مائی فرسٹ اٹیمپٹ اینڈ آئی گاٹ ایلوکیٹڈ. تو یہ ایک فرسٹ اٹیمپٹ اور بہت تھوڑا ٹائم میں اگر میں ایلوکیٹ ہوئی ہوں تو دس کریڈٹ آلسو گوز ٹو نوا. نیکسٹ کامیاب ہوئی بھی طالب علم کی طرف جن کا نام شبانہ نذیر ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری محنت کا صلہ دیا ہے, میری محنت کو قبول کیا ہے. اس کے بعد میں اپنی فیملی کا شکریہ ادا کروں گی اور ساتھ ہی نووا فیملی کا بھی. وداؤٹ نووا اٹ واز امپاسبل فار می. آپ پلیز بتائیے گا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا جب انٹرویو ہو رہا تھا؟ میرا بڑا انٹرسٹنگ گیا تھا, اللہ کا شکر ہے, واقعی میں بہت انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے تھوڑا سا ہمیں ٹیز بھی کیا تھا شاید, یا ہمیں انجوائے بھی کر رہے تھے. تو انجوائے تو ہم بھی کر رہے تھے لیکن تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کرتارپور اتاری کے 3 فائدے بتائیں. تو میں انہیں بار بار کہہ رہی تھی سر وہ میں نے پہلا فائدہ یہ بتایا, میں نے کہا سر وہ سے خوش ہو گئے ہیں انڈیا کے. کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ خوش ہو گئے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا. میں نے کہا انہوں نے ہمارا فلیگ اپنے ملک میں لہرایا ہے, ہمیں خوشی ہوئی ہے. کہتے ہیں اچھا آپ کو خوشی ہوئی فلیگ لہرایا. تو میں نے کہا یس سر میں بہت خوشی ہوئی ہے مجھے. تو سر کہتے ہیں اچھا تو اگر وہ انڈیا کا فلیگ جو ہے وہ بلوچستان میں لہرا دیں تو پھر کیسا لگے گا. تو میں ایک دم شوق میں نے کہا نو سر نیور, ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. تو پھر سر کہتے ہیں نہیں یہ تو ڈپلومیسی ہو گئی ہے, تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کا ادھر لہرایا جائے تو آپ خوشی فیل کر رہے ہیں, ادھر لہرایا جائے تو آپ کہہ رہی ہیں برداشت نہیں کریں گے. تو بس اس پر مجھے نہیں لگ رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا جواب دوں. تو واقعی ہماری فیلنگز انڈیا کے بارے میں وہی آتی ہیں اور وہ انکانشیس ایک رد عمل تھا میرا. باقی سارا کچھ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں پریکنا خان. جتنے بھی کوالیفائرس ہیں میں ان کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گی. اور اس کے بعد آف کورس اللہ آلمائٹی کو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ہیم کہ اتنی بلیسنگس کے لیے. اینڈ میم میں آپ کی بھی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو اور ساری این او وی ٹیم, پھر میری فیملی اینڈ فرینڈس. میم سب سے جو میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی, میں خود گریجویٹ ہوں کیمسٹری کی قائد اعظم سے, لیکن میں نے آپ کی ساری کلاسز لی تھی جنرل سائنس کی, کیونکہ جو آپ کی سی ایس ایس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے جو آپ نے سبجیکٹ پڑھا ہوتا ہے. تو مجھے جو ہے وہ اکیڈمی نے بہت ہیلپ کیا تھا, اور شاید اتنے کم ٹائم میں یہ کور نہ کر پاتی اگر میں اکیڈمی جوائن نہ کرتی. پھر یہ ہے کہ جو کرنٹ افیئرس کی ہماری کلاسز ہیں, میں نے لٹرلی ایک ٹاپک پہ 6-7 لیکچرز لیے تھے, اور پھر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ ایک لیکچر لیتے ہو وہ آپ کی 80% پیپرز میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. اینی وے ایک پلیٹ فارم آپ کو دیتا ہے. میری وہاں پہ جو فرینڈس ہم لوگ بنے, ہم ڈفرینٹ بیچز سے تھے. وی یوز ٹو ڈسکس لائک ڈفرینٹ ٹیچر سے ایک سبجیکٹ پڑھنا, پھر جا کے وہ سارا ڈسکس کرنا. تو اٹ واز ریئلی ہیلپ فل. اور پھر میں انہیں ان انسپائرنٹس کو کہنا چاہوں گی جو اس بار نہیں ایلوکیٹ ہو پائے کہ ڈونٹ لوز ہوپ. میں نے بھی 2018 کا جب دیا تھا تو آئی کڈنٹ میک اٹ, اینڈ جب میری ڈی ایم سی آئی تھی تو I was jumping and I was so happy, and like my family was like what happened, and I told them کہ look میرے سارے پیپرز پاس ہو گئے ہیں, I just couldn't make it in English paper, so مجھے صرف انگلش پہ کام کرنا ہے. تو آپ پازیٹیو رہیں. پھر ٹیچرس کی گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ مور دین انف ہوتی ہے, بس جسٹ آپ کو تھوڑا سا فوکس اور کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, اور اللہ پہ یقین رکھ کے سب کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. بس ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے ہر کام کے لیے. آپ مجھے بتانا چاہیں گے, دیکھیے آپ نے کیمسٹری میں کیمسٹری پڑھی ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے, اور آپ جو ہیں آپ نے پی ایم ایس کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کیا موٹیویشن تھی کہ آپ نے اپنی فیلڈ کو پورا چینج کر دیا؟ میم یہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن تو آپ کی جیسے پہلے بھی اس نے کہا اٹس فرام ود ان, اور فیلڈ جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایک وہ اکیڈیمکس کا کوئی چوز کرنا اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ جب آپ کی جاب چوائسیز ہوتی ہیں اس سے. میرا یہ تھا کہ ہمارا یوزلی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو ایون اگر ہم لوگ سائنس کے سبجیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کوائٹ ہیلپ فل ہوتے ہیں جو آپ کا سائنس ٹیمپرمنٹ بنتا ہے. تو میم مجھے تو ہیلپ کیا ہے کیمسٹری نے, لائک آپ کا ایک زیادہ آپ ٹائم اسٹڈی کر سکتے ہو, آپ کا اسٹیمنا ہوتا ہے, پھر آپ کے جو چیزوں کو بالکل آپ نے ارینج کرنا ہوتا ہے سارا کچھ. تو میرے لیے تو ہیلپ فل رہا ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے مسکنسیپشن کہ اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کے لیے ڈفیکلٹ ہوتا ہے. نہیں, کچھ جگہ پہ آپ کو بھی لائک پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں,
تو کچھ ہمارے لیے بھی اس کے پروز ہیں. تھینک یو سو مچ بیٹنا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے نویرہ فاروق. آپ اگر بتانا چاہیں اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس سفر کو طے کیا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے پیرنٹس کا اور اپنے ٹیچرس کا تھینک یو کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے میں یہاں پہ پہنچی ہوں. اور دوسرا میں اپنی جرنی شیئر کرنا چاہوں گی. 2018 میں نے CSS کا ایگزام دیا تھا جس میں ریٹن میرا کلیئر ہو گیا تھا لیکن میری ایلوکیشن نہیں ہو سکی تھی. تو وہ تھوڑا سا میرے لیے ٹف ٹائم تھا. لیکن پھر اس کے بعد بندہ اوبویسلی ڈسہارٹ ہو جاتا ہے اور موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو سب لوگوں کا میں سن رہی تھی تو سب کہتے ہیں کہ آپ کو اندر سے موٹیویشن پیدا کرنی پڑتی ہے. لیکن میرے کیس میں یہ تھا کہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور بہت زیادہ پش کیا. انہوں نے کہا نہیں تم کر سکتی ہو اور تمہیں کرنا چاہیے. اور پھر میں نے اسٹرگل کی, دوبارہ سے میں نے PMS کے پیپرز دیے, اس میں میرا کلیئر بھی ہو گیا اور میری ایلوکیشن بھی ہو گئی اور میرا میرٹ نمبر بھی بہت اچھا آیا, 11th پوزیشن آئی میری. اور اس ٹائم میری 1 سال کی بیٹی بھی تھی. تو آپ کو ہرڈلز بہت زیادہ آتے ہیں اس ساری جرنی میں, لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس موٹیویشن ہو اور ایک پشنگ فورس ہو آپ کے پاس تو آپ کر سکتے ہو. اور دوسرا یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو لائف میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے شاید یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے, آپ کا ابھی نہیں ہونا چاہیے. اور بعد میں جب آپ کا ہو جاتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے ہاں شاید یہ ٹائم میرے لیے اچھا تھا, اس لیے میرا شاید پہلے نہیں ہوا اور میرا اب ہو گیا ہے. تو یہ کہ اسٹرگلس تو ہوتی ہیں ہر ایک کی زندگی میں, لیکن یہ کہ آپ کو ڈیڈیکیٹڈ رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کی ایک بیس بنی ہوتی ہے نا, اس پہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے تو آپ کی جو آپ کا ایم ہے وہ پورا ہوگا, اور جو آپ جس کے لیے آپ اسٹرگل کرتے ہو وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا. اور اس سارے میں نوا کا بہت بڑا ہاتھ یہ ہے کہ جب میں CSS کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا CSS کے بارے میں. تو ایک جو میری بیس بنائی ہے میرے ٹیچرز نے, نوا کے ٹیچرز نے, وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کی بیسس پر ہی میں نے PMS کی بھی تیاری کی ہے. PMS کی میں نے خود گھر بیٹھ کے تیاری کی ہے, لیکن وہ میری اسٹرانگ اتنی بیس بن چکی تھی میرے ٹیچرز کی وجہ سے, گائیڈ لائن تو میرے پاس تھی. تو پھر آگے میں نے خود اسی پہ محنت کی اور آج میں اس مقام پہ پہنچ گئی ہوں کہ میں آج ایلوکیٹ ہو گئی ہوں اور اب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں اور اپنی جرنی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے. 18 کی کوالیفائی ہے نا؟ ہاں جی 18 کی کوالیفائی. تو آپ کرتے کہ سائیکالوجی میں شاید صاحب تھے. ہاں جی میں نے آپ دونوں کے ساتھ میں نے انٹرویو کی تیاری کی تھی. آپ نے کسی کا آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ بہت سے لوگ اس دفعہ کی کوالیفائی نہیں کر سکتے جو کہ دوبارہ سے سوچ ہیں کیا پیغام دیں؟ اس ٹائم تو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے, مطلب میں کیوں ایلوکیٹ نہیں ہوں, میرے ساتھ کے باقی سب ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہو تو یہ کہ آپ کو تھوڑا سا کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا, اور یہ کہ تھوڑا سا پش کرنا پڑے گا. یا تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہو جو آپ کو پش کرے, یا خود سے آپ کو اپنے اندر سے یہ ڈیڈیکیشن پروڈیوس کرنی پڑے گی کہ میں نے کرنا ہے اور میں کروں گا. کیونکہ ہرڈلز آتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پہ رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ تھی فیملی کی, میری بیٹی بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے اسٹرگل کی اور آج دیکھے کہ میری ایلوکیشن ہو گئی ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھی ایلوکیشن ہوئی ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی. اس ٹائم سے میں نے سیکھا بھی ہے کہ مطلب ریٹن کلیئر کرنے کے باوجود میری ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی. تو یہ کہ آپ کو تھوڑا سا کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, اور یہ کہ آپ اپنی ٹیچرز کی باتوں سے آپ بہت سیکھتے ہو. کیونکہ مجھے سر کہتے تھے کہ آپ کا ہو جائے گا, آپ فکر نہ کرو, آپ کا تو کلیئر ہو جائے گا. تو اس ٹائم میرا نہیں ہوا تو میں یہ چیز سر غلط کہتے تھے, لیکن اب جب میرا ہو گیا ہے تو میں کہتی ہوں ہاں سر کو شاید پتہ تھا یا سر نے دیکھ لیا تھا. تو اس لیے آپ ٹیچرز کی اپنی باتوں کو سیریس لیں, اور یہ کہ ان کے آپ ایکسپیرینس سے سیکھیں. سر یہ ٹوٹتا کون نہیں ہے, بات اس کی ہے کہ ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر. اتنا نہیں ہوتا بہت شکریہ آپ کو, بہت بہت مبارک ہے. میرا میں اسکرین پہ دیکھ پا رہی ہوں جنید شاہ صاحب کو. آپ مجھے بتائیے گا کہ اس پوری جرنی سے پہلے آپ کی کیا جذبات تھے؟ جرنی تو کافی لمبی تھی اور جذبات بھی کافی ایسا سچ سوچا نہیں تھا کہ ایگزام دے دوں اور ایز اے سول سرونٹ بن جاؤں. لیکن ہوتے ہوتے گریجویشن کے بعد
ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اچھا ابھی کوئی جاب ڈھونڈنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, which is a turning point in your life. تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے. تو پھر سوچا, نوا کے بارے میں سوچا, فرینڈ سے سنا, کچھ سینئر جو ہیں وہ نوا کے بارے میں کافی اچھے الفاظ میں بیان کرتے تھے, تو نوا جوائن کیا. ان کی بات کہ بچے آپ گریجویشن کر کے آؤ اور افسر بن کے جاؤ. تو یہ ان کی بات مجھے بڑے دل پہ لگی. میں نے کہا کہ سر کی بات, مطلب وہ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں تو وہ آپ میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو. تو وہاں سے پھر شوق پیدا ہوا, پھر میں اپیئر ہوا. پی ایم ایس کی یہ میری سیکنڈ اٹیمپٹ تھی. فرسٹ اٹیمپٹ میں میری ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی, تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی گائیڈنس لی تھی, لیکن سیکنڈ میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ سیکنڈ میں ایلوکیشن ہو گئی اور آج یہاں بیٹھے ہیں. کافی اس میں اسٹرگل انوالو تھی, سپورٹ بہت انوالو تھا فیملی کا. اس میں سب سے ضروری جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ پورے اسٹرگل میں آپ کو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی سپورٹ نہ کرے, اسپیشلی فیملی, اور پھر آپ اس سپورٹ اور ٹیچرز ان کے سپورٹ کے بغیر, اس لیے کہ یہ جرنی جو ہے یہ ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے. اچانک سے آپ نیچے چلے جاتے ہیں, آپ کا موٹیویشن لیول زیرو ہو جاتا ہے, اچانک سے آپ اوپر آ جاتے ہیں کوئی اچھی بات سن کے اپنے مینٹور سے. یہ جرنی بڑی مشکل جرنی ہوتی ہے, لیکن جیسے مجھ سے پہلے باقی اسپائرنٹس نے کہا کہ یہ ساری گیم نروز کی ہے, آپ نے بڑا اسٹرانگ رہنا ہے, کہ جدوجہد جاری رکھنی ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی محنت پوری کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن پورے یقین کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے. وہ دل میں ہمارے کوئی چھوٹی سی شک و شبہات رہ جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں پوری یقین کے ساتھ چھوڑیں اینڈ دین یو ول پاس وتھ فلائنگ کلرز. تو یہ کچھ آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں, جو آپ کے ان باتوں کو لے کے چلتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جرنی پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے, بڑی آسانی سے آپ اس میں نکل جاتے ہیں. اور I'm very thankful to نوا ٹیم, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. بہت شکریہ جنید شاہ صاحب آپ کا آنے کا اور اتنے ڈیٹیل میں اپنی پوری جرنی کا بتانے کا. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں شاہد اللہ شاہد صاحب. First of all, I'm thankful to CEO Noah Atif Saab, the administration and all the faculty members for arranging such a magnificent ceremony amidst this hard-hitting corona pandemic. I would like to congratulate all those young officers of National Officer Academy who have been allocated both in CSIS and PMS respectively. Indeed, it is a moment of immense pleasure and celebration. It was my long-standing aim to join civil services and become a writer. I am highly inspired with great bureaucrats like Qudratullah Shahab, Rohidat Khan, Ghulam Ishaq Khan and Altaf Gauhar. Undoubtedly, they were glowing examples of bureaucratic professionalism. As far as National Officer Academy is concerned, it has been playing creditable and stunning role in preparing the young generation to meet the challenges of tomorrow. Since its establishment, it has produced hundreds of young bureaucrats who are serving the homeland at different high positions. Now I will share my own experience, sir. To be very honest, sir, and all my dear friends, it is high time to reveal the truth. Because I'm a hell-blunt by nature, I will call a spade a spade. Going back into honest introspection, I will remind a memorable episode. One day I made a surprise visit to my room in hostel. I was sleeping as usual at 10 o'clock. Awoke me instantly. He grilled me and uttered these golden words. शायद आप यहाँ सोने के लिए आए हैं या पढ़ने के लिए. राइटर और ब्यूरोक्रेट बनने के लिए आपको सख्त मेहनत करना पड़ता है. ऐसी बनने के लिए गर्म कंबल से बाहर निकलना होगा. तो ये वो अल्फाज थे. I still remember these words, and that time I was writing for Pakistan Observer and The Nation, and still I am continuing my dead struggle, and I am writing on different social, political and economic issues. Recently my 2 articles have been published in Pakistan Observer and Frontier Post on the sinking economy of Pakistan. Dear sir, you always motivated, encouraged and actively supported me on every front. You stood by me through each thick and thin,
throughout my preparation for CSS and PMS. I am getting emotional, sir. I have no words to express my profound gratitude for your superb and sincere role in unlocking my hidden potential and broadening my mental horizons. This was my glorious time which I had passed here in National Officer Academy, Islamabad. I would like to request all the young officers that with your unflinching commitment, firm resolve, and tremendous altruistic public services, you can change the destiny of the oppressed and downtrodden masses living in Qaid and Iqbal's Pakistan. It is high time to serve the nuclear and greater Pakistan. Thank you all for giving me time. In the end, I will say, I will quote Abraham Lincoln, I shall prepare, one day my chance will come. And my personal request to all CSS PMS aspirants, remember that CSS and PMS is not a matter of life and death for you people. If it is meant for you, it will come to you. But you have strong consistency and commitment to ace through CSS and PMS with flying colors. Thank you. Assalam. साहब, मुझे भी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन पता चली आपके बारे में कि आप राइटर भी हैं माशाल्लाह से, आप कॉलमिस्ट भी हैं, आप लिखते हैं। वैसे ये बात सच है क्या आपके बारे में? Yes, I am writing. I am very inspired from Qudratullah Shahab, and I have a book here in my right hand, in my left hand. So Qudratullah Shahab had written Shahabnama. I will write Shahidnama, and my active years, my civil services में जितना मैं टाइम में गुजारूंगा active years in civil services, तो वो मैं लिखूंगा। तो मेरे एक्सपीरियंस ने आपको सीएसएस की जर्नी में कैसे हेल्प की और आप इससे क्या गाइडेंस जो है वो आने वाले आप देना चाहेंगे? Yes, sir, to be very honest, I had scored 668 marks in CSS 2016. That time only 200 candidates had passed CSS examination, and in Presse I had scored 28 marks. So then came that I became a civil servant and eventually a writer as well. Now I will share an interesting story with you, sir. When I had not passed CSS PMS examinations, I mean when I was not given this tag civil servant, no newspaper was ready to accept my article, my column to publish it. But nowadays every newspaper, every columnist called me and they told me, Shahid, please send me your article on different issues to this newspaper. Even Javed Chaudhry साहब made me phone call. बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने अपनी कामयाबी का मिराज बताया है और किस तरह इतने खलूस तरीके से आपने बताया कि किस तरह से नोआ के साथ आपका ताल्लुक रहा है। मेरे ख्याल से पीएमएस तो हम साथ ज्वाइन करते रहेंगे, तो पीएमएस की हमारी तरफ का बात है, हम सीएसएस की तरफ आ जाते हैं। सीएसएस में एंडिंग के सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद है मारिया लतीफ, जो कि सेंट एविल से का ताल्लुक है और उनकी एजुकेशन कमीशन में मिली है। First of all, I would like to thank Almighty Allah for blessing me with the opportunity to serve my country. Second, I would like to thank Noah Academy for providing me with the basic guidelines to crack CSS within 4 months. I would like to thank my teachers. सारे teachers ने बहुत help की हमारी. And third, I would like to thank my family for their consistent support and love. My sister and my best friend Hina. And मैं सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ। जो सीएसएस के बारे में एक बेसिकली मिसकंसेप्शन है कि इट्स लाइक वेरी हार्ड एंड यू नीड टू स्टडी फॉर लाइक मिलियन एंड मिलियन ऑफ इयर्स, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ मंथ में स्मार्ट स्टडी के थ्रू से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मारिया, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपको देख के और आपसे बात करके। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट जिनका नाम रमशा तारिक है और सीएसएस 2019 में सिंध रूरल से वो एलोकेट हुई हैं और वो एलोकेट पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हुई हैं। इट्स अ वेरी गुड। तो रमशा क्या कहना चाह रही हैं आप? आज सीएसएस 2019 को क्वालिफाई किया है और आज हमारे सामने बैठी हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके क्या जज्बात थे जब रिजल्ट आया, आपने किस तरह से मेहनत की और आप किस तरह से आज हमारे सामने एज अ सीएसपी बैठी हुई। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको कैसा महसूस हो? मुझे ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा इस बारे में लग रहा है कि पहले अटेम्प्ट में हो गया, दोबारा नहीं करना पड़ेगा और करना भी नहीं था दोबारा। सबसे पहले यही सोच के किया था कि एक दफा ट्राई करना है और इंशाल्लाह हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सोचा नहीं था उस बारे में। तो शुक्र है कि सोचना नहीं पड़ा मुझे दोबारा उस बारे में कि दोबारा ना हुआ तो क्या। तो सबसे पहले तो मुझे ये इस बारे में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो भी गया एलोकेशन। तो ये तो सबसे ग्रेट फीलिंग मेरी यही है। और सब उसके बाद सबसे ज़्यादा थैंकफुल ग्रेटफुल फील करती हूँ इस बात के लिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, शुक्र है जो भी एलोकेशन मेरी हुई है
اور مجھے یہ دوبارہ اٹیمپٹ نہیں کرنا ہے. یہ والا جو لوگ کرتے رہتے ہیں دوبارہ کہ ابھی یہ نہیں ہے اچھا گروپ, دوبارہ اور اچھا گروپ مل جائے, پھر سے اٹیمپٹ کرنا ہے, پھر سے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو اس بارے میں صرف یہی میری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کے الگ الگ گولز ہوتے ہیں, الگ الگ ایمبیشنز ہوتے ہیں لائف میں. اسی طرح ہر انسان کے خوش ہونے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ہر انسان کے شکر کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میرے جو گولز ہیں وہ جب تک میں اچیو کر رہی ہوں تو وہ تب تک میں خوش ہوں, شکر ہے اللہ کا, تو تب تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس بارے میں زیادہ خوش ہوں. یہ زیادہ میری فیلنگس اس طرح کی تھی جب رزلٹ آیا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی سورس آف موٹیویشن کیا تھی اور آپ کے جرنی کے اندر آپ کے لیے آپ کو بیک اپ کس نے کیا سب سے زیادہ؟ میں یہاں پہ میں نے 2 چیزیں لرن کی ہیں اس پورے پروسیس میں, اور جو 2 چیزیں میں شیئر بھی کرنا چاہتی ہوں. سب سے بڑی بات ہے کہ فیملی آف کورس سپورٹ کرتی ہے, سب کو کرتی ہے. فارچونیٹ ہوں میں کہ میری فیملی نے بھی مجھے سپورٹ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ نوا تک جو میں پہنچی, جس قسمت کے ساتھ پہنچی, وہ بھی بہت بڑی ایک بات تھی, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا نوا کے بارے میں, نہ CSS کے بارے میں. وہ تو میرے خیال سے میں بہت لکی رہی ہوں سب چیزوں کو لے کے. لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ایک بات ہم کرتے ہیں ہمیشہ کہ خواتین کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, خواتین یہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. بہت سارے ایسے کوشچنز آتے ہیں. اس سے بھی بڑا یہ کوشچن آتا ہے کہ خواتین جب خواتین کو سپورٹ کرتی ہیں تو کیا ایک میجک کریٹ ہوتا ہے. وہ میں میرے خیال سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. میری جو یہاں تک پہنچنے کا سفر ہے اس میں 3 خواتین کا سب سے بڑا رول ہے. میری مدر تو آف کورس ہیں جو ہے, وہ تو کبھی میں ڈینائی نہیں کر سکتی, لیکن پرٹیکولرلی CSS کی جرنی میں اگر میں مینشن کروں تو مائی ایلڈر سسٹر, دین میم امبر گیلانی, اینڈ دین میم مریم جمیلہ. میری بہن کے علاوہ 2 یہ آفیسرز بھی ہیں, میرے سینئرز بھی ہیں, اور میرے بہت بڑا سپورٹ سسٹم بھی رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ 3 ایسی خواتین ہیں جن کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے. تو یہ میں نے بہت بڑی لرننگ کی ہے کہ میرے خیال سے خواتین کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے دوسری خواتین کو, اور پھر ایسا میجک کریٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے لائف میں کیا کرنا ہے, اور آپ یہاں تک پہنچ کے بیٹھے ہوتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ میں, جب آپ اپنے سامنے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں 3 دفعہ اسٹرگل کرتے ہوئے. تو یہ بہت اچھی فیلنگ ہے اور لرننگ. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ CSS میں جو وومن کی تعداد ہے, خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ آنا شروع ہوگی. اب تو لائک مور دین 40% جو ہے آپ کے بیچ میں بھی 40% زیادہ خواتین ہوئی. تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ آگے نکل رہی ہیں اور مردوں کی شانہ بشانہ چل رہی ہے؟ اس لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. یہی کہوں گی کہ بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہماری خواتین بھی اتنا ہی آگے جا رہی ہیں جتنے کہ ہمارے مرد ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے پیٹریارکل سوسائٹی ہے ہماری, اور خواتین ہماری بہت ہی یہاں پہ مارجنلائزڈ ہیں. لیکن اگر ہماری اگزامپل کوئی دے سکتا ہے, ہم کسی کے لیے اگزامپل بن سکتے ہیں, یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اس مقام تک پہنچے اپنی کسی تھوڑی سی مدد سے, کسی بہت سارے لوگوں کی موٹیویشن سے, اور تھوڑے سا ہارڈ ورک سے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے لیے, کہ اگر مجھے کوئی دیکھ کے انسپریشن لینا ہے کہ یہ یہاں ہے تو ہم بھی ہو سکتے ہیں, کہ یہ اگر لڑکی ہو کے یہ کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بس یہ میرے خیال سے. تھینک یو سو مچ آپ کو جوائن کرنے کے لیے.